Today is July 19th, a Yes. historic day in the history of Indian banking because exactly 51 years ago, on the same day, Indian banks were nationalized. Yes. I have with me to discuss at length on this issue two gentlemen from All India Bank Officials Confederation. Mr. Sanjoy Das, State Secretary of West Bengal, and Mr. Dilip Chauhan, State Secretary of Uttar Pradesh. My Yes. first question to you, Mr. Das, what is the current scenario of nationalized banks in the country at the moment? Actually, देखिए lot many threat on the nationalized banks from the government side, but still the nationalized bank they are doing well. Almost all the banks they are having their operating profit. But as because there is some sort of provisioning norms changes and as per the NPA it is mounting up. Therefore, lot many provisions are required. That's why in the balance sheet when we are coming to the balance sheet there it may seem to you that the banks are making losses. It is not like that. It is due to the changes of the policies of the government. And so far the nationalized banks are concerned, at present, you will find a nationalized bank, they are contributing to the nation. Because so far at present, if you go into the details, and so far the present government scenario is also concerned, so far the DBT accounts are concerned, so for the at present for strengthening the MSME sector, that is the G sale accounts are concerned. So for the boosting up of the our agricultural loan is concerned, that is KCC. Nationalized Bank they are taking and they are contributing 97 to 98%. So for the Jandhan Yojana accounts is concerned, out of the 40 crores accounts, 32 crores accounts it has been opened by the nationalized bank, and 7 crore account it has been opened by the RRB. Means in totality it is 37 to 38 crores. Out of this 40 crores it has been opened by the nationalized bank. For very well you can understand what is the situation of the nationalized bank at present. Still they are doing good. ओके, चौहान साहब, अगला सवाल आपसे है। कल एक बैंक फेडरेशन ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें विलफुल डिफॉल्टर्स की बात हुई थी। तो इस लिस्ट को कल जारी करने का उद्देश्य क्या था? क्या आप किस तरह का संकेत देना चाह रहे हैं भारत सरकार को इस तरह के डेटा को रिलीज करके नेशनलाइजेशन की जो डेट है उसके सिर्फ एक दिन पहले? आप सहमत होंगे कि हम लोग की डिमांड हरदम रही है कि विलफुल डिफॉल्टर्स को बताया जाए। हम लोगों ने हरदम मांगा है, लेकिन हम लोगों ने इसके जरिए ये मैसेज दिया है कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो हम करेंगे। जब हमारे अस्तित्व की बात आएगी, हमें मर्ज कर देंगे, हमें प्राइवेटाइज कर देंगे, हमें खत्म करने पे उतारूंगे, तो हम तो बताएंगे लोगों को। जो आज आप पहले जब इन्होंने 1969 में बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, तब तो आपको ध्यान होगा कॉर्पोरेट्स गिने चुने थे। आज हर गली नुक्कड़ पे कॉर्पोरेट की तो बैंक की चोरी करके ही बने हैं अधिकतर। तो उनका नाम बताने में क्या शर्म है इनको? जो सरकार को बनाने में चंदा देते हैं वही तो आज का कॉर्पोरेट हो गए। अब वो चंदा देते हैं वही। हाँ सर। विवेक जी, Parliamentary Standing Committee, they took the decision and they percolated down the advisory to the Reserve Bank of India कि आप नाम पब्लिश करो। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का भी इनका जो इंस्ट्रक्शन था, इन्होंने ये भी वायलेट करके नाम पब्लिश नहीं कर रहा। ये सिर्फ हमारे मांगे नहीं थे, हम तो बहुत दिन पिछले 10 साल से मांग रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी आल्सो गिवन द डायरेक्शन इन दैट लाइन। ओके, दादा ये तो कुछ नहीं कर रहा है ना। Exactly. So, Mr. Das, the next question to you is that in the last financial year, public sector banks were given capitalization of 70,000 crores, and in this year it is just 3.5 crores. What do you make out of this? Actually, देखिए, अब तो government they are telling that there will be no brick and mortar banking and there is no fate of the public sector banks, and public sector banks they are born to die. This type of situation is going on, and government is in the belief that the public sector bank they will have to be converted into the private bank. That's why they are not taking this much of interest and all these things. And whatever the capital infusion it is being infused into the government banks, I mean the nationalized bank, 3 to 4 times we are giving out of the dividend and the tax to the government also. They are considering that they are infusing the capital, लेकिन उल्टा हम तो डिविडेंड भी दे रहे हैं गवर्नमेंट को। वो कहाँ जा रहा है?
उन्होंने 70,000 करोड़ जब हमको कैपिटल दिया, उसमें से 68,000 कुछ करोड़ का उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। तो एक तरीके से उन्होंने अपने चोरों को बचाने के लिए कैपिटल दिया, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कह दिया। इंडियन बैंक्रप्सी कोड में उन्होंने 68-69,000 हमें दिया है, तो उन्होंने दिया क्या? वो तो अपने कॉर्पोरेट को बढ़ावा देने के लिए ये सब दिया है। चौहान साहब, ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है जो पोस्ट कोविड सिचुएशन है, जिसमें बैंकों से कहा जा रहा है कि आप एमएसएमई को लोन दीजिए, जो ऑलरेडी लोग लोन ले चुके हैं और वापस नहीं कर पाए हैं उनको भी लोन दीजिए, तो ये कितना वाजिब है और क्या आने वाले समय में इसकी जवाबदेही बैंक्स और बैंकर्स की नहीं होगी? सर, बेसिक चीज ये है कि इस समय एनपीए अकाउंट्स को रिव्यू नहीं हुए हैं, अकाउंट्स को री-सैंक्शन बगैर किए सबको लोन देना है। मतलब ये गवर्नमेंट ये कर रही है। बैंकों में मान लीजिए आपके घर है, कल को सरकार जनता अभी अपनी जेब से पैसा आपके यहाँ रखने लगेगी, आपका बैंक हो जाएगा। तो सरकार की जितने भी बैंक हैं वो पब्लिक फंड से बने हुए हैं। तो ये 20 लाख करोड़ मतलब इन्होंने पैकेज दिया है, वो केवल बैंक के लोन के जरिए पैसे वालों की मदद के लिए। ये अभी प्रवासी भारतीय तमाम तरीके के नाम चले थे जिनका ये नाटक करते हैं, गरीब आदमी को तो जिंदा रहना ये गिनते ही नहीं है। उनके लिए क्या किया इन्होंने? 20 लाख करोड़ में 20 पैसे भी क्या उनके लिए है, और 20 लाख करोड़ भी ये अपनी जेब से कहा दे रहे हैं। तो जनता का पैसा बांट रहे हैं और कल को उनको एनपीए करेंगे। आप देखिएगा वो सारा खाता एनपीए हो जाएगा और बैंक को कहेंगे ये कैपिटल नहीं है इनके पास। आप 3,50,000 करोड़ कह रहे हैं, उतना तो ये मीटिंग करके आईबीए वाले चाय पी जाएंगे। तो सर ये बना रहे हैं। A question for you now. Do you think that the merger of banks, all nationalized banks, into 12 banks by the current government, do you justify it? Do you see some, strength coming in for the banks with this merger of banks and making 12 banks? Do you justify this logic? No, sir. Actually, देखिए ये बहुत ही means this is a very genuine question and it is a very crystal clear. If you add 2 plus 3, it will always come to 5. And by the merger of these banks, government whatever they are saying for the betterment of the country, because there is a huge piling up of the NPA and there will be some sort of solution to it. It is not going to solve any problem because 2 plus 3 it is 5 always. But if both the 2 banks or the 3 banks, if it is being clubbed together, then automatically whatever the NPAs they are having, it will be accumulated and it will be a big figure. It is not going to serve the purpose and simply they are befooling the public. चौहान साहब, इस पे आपका क्या कहना है? दादा, इसमें एक चीज और है, ये लोग 2 plus 3 = 5 नहीं, 2 plus 3 = 2 कर रहे हैं। अभी स्टेट बैंक में सब्सिडरीज का, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ, उसमें से कैनरा बैंक के सारे एग्जीक्यूटिव्स निकाल दिए गए, सारे नीचे स्केल 3 तक के वीआरएस ले आए। स्टेट बैंक में पता करिए आप, 10,000 लोग को निकाल दिया इन्होंने। ये लोग निकाले जा रहे हैं, मतलब सर्विसेज जा रही हैं। ये लोग कर कुछ रहे हैं, बात कुछ करते हैं। ये लोग बेरोजगारी के हटाने की बात करते हैं और बेरोजगार कर रहे हैं लोगों को। Exactly. अभी देखिए एयर इंडिया में जिस तरीके से 5 साल या 3 साल लोगों को बगैर तनख्वाह के रखेंगे, तो वो आदमी जिंदा कैसे रहेगा? उनको ये लोग सरकारी आदेश देते हैं कि मरने का। जब बगैर तनख्वाह के मिडिल क्लास आदमी बगैर सैलरी के सर्वाइव कैसे करेगा? Exactly. वही बैंकर का कर रहा है। सर एक चीज और है, बैंक ऑफ इंडिया अभी मान लीजिए स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक में 2 साल पहले कारपोरेट बीसी रखने का टाई अप किया था इन्होंने रिलायंस से कि हम कारपोरेट बीसी रिलायंस का रखेंगे। अभी इनका सर्कुलर आ गया कि 1 man ब्रांचेस ऑल गवर्न्ड बाय कारपोरेट बीसी। स्टेट बैंक के नेता भी चुप है, सरकार भी चुप है, नेता भी चुप। 40% स्टेट बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो गया जियो को। State Bank within very few days, State Bank is going to be the Reliance Bank of India. How can you, Mr. Das? It is a very, very serious thing which you said. How do you exactly justify this? Actually, almost all the services, all the things, it is being transferred to the Reliance or somewhere else. Therefore, automatically this way or that way, the government stake is being reduced and it is being given to the private authorities.
and more dependence on the private authorities it is being given, and the government stake it is being withdrawn. This is the main motto what we can understand from it. Now, you got a very strong body, Mr. Das and Mr. Chauhan. You are covering almost each and every district and state of the country. So, Yes. did you and your body try to meet the finance minister and concerned authorities and raise your voice and concern about privatization? Yes, sir. Yes, sir. Since 1991, we are whosoever the government in the center, we are opposing this thing by saying that the privatization is not the panacea of the solution of the government. The solution of the financial sector. And as because India is starving for this, the main problem of the country is the unemployment. And in the nationalized bank, in the year 2008 to 2011, many finance we have given to the infrastructure sector. That time we were also knowing that infrastructure sector is going to be the bad and many NPAs are going to be created. But that's because it was a national call. Therefore, we had to pursue on those issues and we had to give loans on it. And at the same time also, we have given many letters to the finance minister and the chief minister of the individual states. And during this merger time also, in all the states, we have given the letter to the chief minister, finance minister, DFS. Everywhere, we are knocking all the doors. Because we the bankers, we know that for the safety and security and for the sovereignty of the country's economy, the nationalized bank, it is the only solution. Because it has proved. The data will say in the year 1969, banks were nationalized. After 2-3 years, the insurance sector, it was nationalized. And after the banks being the nationalization, many branches, it was spread to every nook and corner of the country. And the resultantly, it was happened that in our country, in the year 1974 and 1975, our GDP rose up to 9.5%. That was the result of the bank nationalization. Because it was an all-round development, it was possible. That time, Mrs. Gandhi came with the 5 years planning and the 20-point program and many developmental activities. It was made through this. It was made possible through this banking industry. This many branches spread to every nook and corner of the country. चौहान साहब, एक सवाल आपसे है। आज की तारीख में अगर गुणवत्ता की बात करें, जिसमें क्लाइंट सर्विस की बात होती है, एक आम आदमी का ये कहना है कि अगर वो किसी प्राइवेट बैंक में जाता है तो उसको सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं, अटेंशन ज्यादा मिलता है, उसका काम बहुत तेजी से होता है और उसकी सुविधा के हिसाब से होता है। सरकारी बैंक यहाँ पर मात खाते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारी मदर का खाता था ग्रीनडेज बैंक कानपुर में। एक दिन लेटर आया, क्योंकि 25,000 से कम का बैलेंस है, इसलिए खाता बंद कर दिया गया और पे ऑर्डर भेज दिया गया, आप नेशनलाइज्ड बैंक में खोल लीजिए और वहां जमा करके अपनी दुकान चलाइए। आजकल सोसाइटी का 90% काम नेशनलाइज्ड बैंक को दिया जाता है। सारा जनधन का 90% बैंक होते हैं। अभी GSCL पता नहीं कौन सी स्कीम आई है, इनकी 20 लाख करोड़ मोदी साहब को बांटना है तो नेशनलाइज्ड बैंक को बांटना है। ओवर स्टाफ घटता जा रहा है। ये मर्जर करके स्टाफ की कमी पूरा करना चाहते हैं। नए बच्चे जो आंखों में सपना लेके, आंखों में भविष्य लेके नेशनलाइज्ड बैंक में सरकारी नौकरी लेके उसका भविष्य नापते हैं, अपने जीवन में यहाँ आते हैं, उनको निकाला जा रहा है। तो वो अपना प्रचेत 3 साल से। विवेक जी, वन थिंग एक्चुअली सारे अनप्रोडक्टिव लोग लाइन लगाए खड़े हैं, उनको सैलरी रिवीजन नहीं दिया जा रहा है। उसकी इवन दिया जाने की बात छोड़िए, कोई बात करने को नहीं तैयार है। अभी आप दादा से सर, आपने दादा से पूछा कि क्या थे उसके पहले क्वेश्चन आपने, उसके बारे में हम भी बोलना चाहते थे। हाँ, सारे अनप्रोडक्टिव काम बैंकों से करा रहे हैं। आप देखिए 216 लेबर सर इतनी बताइए, 216 लेबर एक्ट को 4 एक्ट में कर दिया। लेबर से पूछा नहीं। मैं तो वही आंकड़े में एक आउट ऑफ द 40 करोड़ स्टूडेंट भी दुकान में काम करता है तो 7 मिल जाएंगे। दादा आपसे इस बात से है कि हम लोग तो कह रहे हैं इन लोगों ने बायलैटरल के सभी फोरम बंद कर दिए हैं, ये किसी की सुनते ही नहीं है। जो इन्होंने मिनिमम वेजेज एक्ट, फलाने एक्ट सब खत्म कर दिए। लेबर एक्ट
बीजेपी शासित सरकारें हैं जितनी उन्होंने लेबर एक्ट 3 साल के लिए खत्म। आज लेबर एक्ट खत्म है, कोई बायोलेटरल नहीं है, कोई मनी नहीं तैयार है। तो आप बताइए, अब आप कर रहे हो, आप बता रहे हो कि हिंदुस्तान में बायोलेटरलिज्म जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। प्रधानमंत्री मन की बात कहता है, मन की बात सुनता नहीं है। हमारे वेतन समझौता 1000 दिन से हो चुका रहा, 1000 दिन से लंबित है हमारे वेतन समझौता। जो हम लोग लड़ रहे हैं कोरोना वॉरियर के रूप में, हम लोग जो लड़ रहे हैं, हमारे 100 आदमी मर रहे हैं कोरोना का चलते, लेकिन उससे के लिए कोई आंसू नहीं बहा रहा है। हम सबके लिए आंसू बहाते रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई आंसू नहीं बहा रहा है। एक बात भी नहीं कह रहा है कि हाँ बैंकर भी कोरोना वॉरियर्स है, दे आर आल्सो द फ्रंटलाइन वॉरियर्स। हमारे लिए कोई नहीं सोचता है। हमारे बैंकर लोग लॉकडाउन इंडिया में नहीं देखा है, लॉकडाउन हमने नहीं देखा है, लॉकडाउन हमारे लिए नहीं है, कंटेनमेंट जोन हमारे लिए नहीं है। वो सारे दुनिया देश के सारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए भी है, लेकिन हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स होते हुए भी हम लॉकडाउन नहीं देखा है कभी। बैंक हर रोज खुलता है, हर आदमी काम करने के लिए जाता है। Mr. Das agreed in totality that government banks, nationalized banks have done great work in this situation of COVID-19. But I will put the same question to you, which I had put across to Mr. Chauhan. He gave one example of a private bank, but the general feeling amongst the masses, amongst the people is that they would not like to go to a nationalized bank because of its poor servicing and handling of clients. Instead, they feel, most of them feel, I would say, that private banks are doing better service in terms of time saving. Do you agree with this or not? No, sir. Actually, we are giving what I was talking to you. We are giving unproductive services. Lot many unproductive services we are giving during this period. Also, COVID period. Also, we have invested lot many time for distribution of these 500 rupees for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. उन लोगों का वो पास वो चीज नहीं है। हमारे पास अगर वो काम नहीं रहता तो आई वुड हैव कंसंट्रेटेड इन गिविंग मोर टाइम फॉर द नॉर्मल डिपॉजिटर्स और द नॉर्मल कस्टमर्स। मेरे को तो वो काम करने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ता है। आपने देखा होगा विभिन्न बैंकों का सामने जो क्यू, लंबे जो क्यू ये कोविड पीरियड में रहा, वो कोविड पीरियड में वो लंबे क्यू को हम कैसे संभाले, उसको संभाल के हम अच्छा तुरंत सर्विस हम कैसे देंगे। मैंने तो वही कहा, अगर जनधन योजना का 39 मीन्स 98% काम हमें करना पड़ रहा है, GCL का काम हमें करना पड़ रहा है। वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू कंसंट्रेट ऑन द बेटर और द प्रोडक्टिव थिंग्स, as because we know we are duty bound. We know that is the call of the nation and that is our duty. Therefore, we are doing that duty. We may be dubbed as a we are not a prudent banker. We are not giving that much of suited service. That may be, but it is the call of the nation. हमारे गरीब देश है, गरीब देश के लिए हम जो सर्विस देते हैं दैट इज द कॉल ऑफ द नेशन। वो हम चाहते हैं कि हमारे गरीब आम जनता को सबका साथ सबका विकास तो नेशनलाइज्ड बैंक ही करता है, लेकिन प्राइवेट बैंक कहां सबका साथ सबका विकास करता है। आप सबका साथ सबका विकास के लिए अगर बोलोगे तब तो आपको नेशनलाइज्ड बैंक जो कर रहे हैं उसी को आपको साथ देना पड़ेगा। और सर अगर भारत सरकार खाते खुलवाती है जनधन के और GSCL के, इनकी कॉस्ट भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, क्योंकि सरकारी क्षेत्र की बैंकें भी धर्मादा बांटने के लिए नहीं खुली है, जनता से पैसा लेती है, उनका रिटर्न भी उनको देना पड़ता है, बराबर का ब्याज प्राइवेट बैंक भी देते हैं, हम भी देते हैं। यार हमारे रिटर्न हमको बराबर का देना है, हमारे काम में क्यों आप टांग लाते हो? हमको लेवल प्लेइंग फील्ड में दे दीजिए ना, देखिए ना क्या होता है। नेशनलाइज्ड बैंक पीपल दे विल लिव फार बेटर देन द प्राइवेट बैंक, दैट इज माय चैलेंज, because we know how to work in a turbulent situation. We have learned all the things. हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दीजिए, we will prove ourselves that we are far better than the private bank. एक तरफ ये कहते हैं कि आप प्रॉफिट नहीं अर्न करते हो, और जिस लोन को हम जान I would come to another question now, because I think Chauhan Saab is having some weak signals over where he's sitting. Mr. Das, now there are talks of privatization of some banks. That is in the newspapers, in the news. Yes. What do you have to say about this? Like Punjab and Sindh Bank or some other banks. Yes, sir. What do you have to say about this? Sir, I think though in the media
it is some sort of means permutation combination is going on, that this bank is going to be privatized. We have seen that is the well orchestrated drama by this government, because before the merger and all these things, and lot many permutation combinations, it was coming to the news media or the print media or the electronic media. But whenever we are asking them, they are saying that no, such type of things are, the ideas are not there in our finance ministry or something like that. But we know they are trying to make it means to the public, so that people cannot raise hue and cry in one fine morning. We means they are trying to convince the people, they are trying to put it to the people so that they are accustomed to all the things. But my suggestion is that, my perception is that it is not only the privatization of these only 2-3 banks, because the privatization, the Bank Nationalization Act 1969, it was all the governments, they were trying to repeal the act. But because there was no majority in the parliament, that's why they are not in a position to repeal the 1969 Act. But if it is repealed, then all the banks, they will try to privatize. It is not like a particular 2-3 banks. If the 1969 Act is repealed, then all the banks can be privatized. But now, once the government thinks that it will go ahead with privatization of, to start with some banks, what is your body going to do about it? This question is both for you and Mr. Chauhan. Yes, we will raise our voice, and we will raise wholehearted protest throughout the country, because that is not going to give any type of help for the countrymen, and the people, they are having their hard-earned money that will be lost, and that will not be given to the protection. That's why we think for the sovereignty of the country's economy, therefore the common people should come forward to join with us to make the protest against this thing. सर बेसिक चीज ये है कि ये क्वेश्चन आपको जनता को समझाना चाहिए कि वो प्राइवेटाइजेशन बैंकर से ज्यादा जनता को नुकसान करेगा। बैंकिंग जो जिन गिने चुने परिवारों तक सीमित थी, उनसे छीन के जनता में लाया गया था। अब ये उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। या तो ये इंदिरा जी गलत है, उन्होंने वो कारण जिनके कारण बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था वो खत्म हो गए हो, बेरोजगारी खत्म हो गई हो, विकास हो गया हो। अब ये विकास के लिए पता नहीं क्या गाना गाते रहते हैं। दुनिया से 56 करोड़ आ रहा है हिंदुस्तान में, कहां से आ रहा है पैसा? हिंदुस्तान के माहौल में कौन इन्वेस्ट करेगा? जनता को समझाना चाहिए सर, जनता इसमें लुटेगी। जनता को जब तक समझ में आएगा, जब तक देर हो जाएगी। ये लोग जनता की जेब पर डाका डालने के लिए जनता के पैसे पर 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। प्रवासी भारतीय तो मर रहे हैं, उसी तरीके से आज भी मर रहे हैं। 4 करोड़ आदमी सड़क पे घूम रहा है, सड़क पे मर रहा है, उसका कोई पुरसा हाल नहीं है। और ये अपना ये प्राइवेटाइजेशन आप देख, हमारे ख्याल से जो आप ये कोरोना का आजकल चल रहा है, इसका ये डर पैदा करके अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। कोरोना की वास्तविकता जनता तक आने नहीं देना चाहते हैं, और उसके डर के आधार पे अपना वो पूरा करना चाहते हैं। और सर एक चीज और है, आपने पूछा अधिकारी संघ क्या कर रहा है। अधिकारी संघ आप जानते हैं आईडी एक्ट में नहीं आता है, लेकिन जो भी मौका मिलता है इस अंधी गुंगी सरकार से हम लोग कहने से नहीं चूकते हैं। लेकिन ये लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं किसी की। बायलैटरल फोरम हिंदुस्तान में सब खत्म कर दिए इन्होंने। आज इन्होंने सैलरी डिवीजन को भी 3 साल खामखा इसलिए टांगा है क्योंकि ये किसी न किसी चीज को बार्गेन कर लेंगे। ये किसी न किसी चीज को आप देख लीजिएगा, उसमें जनता बर्बाद होगी। जो लोग जॉब में हैं उनका तो कुछ नहीं जाएगा। आगे आने वाले लोगों को, आज ये रोजगार की बात करते हैं, बैंक सबसे बड़े रोजगार के साधन थे। जब पहले 156 दादा के समय में 156 या 225 ऑफिसर्स चुने जाते थे, आज 10-10 हजार ऑफिसर्स चुने जाते हैं। ये सर सब खत्म हो जाएगा। लोगों को केवल हिंदुस्तान में 2 ही वर्ग बचेंगे, एक डोमिनेट करेगा पैसे वाला, एक नीचे वाला, बाकी कोई बचेगा ही नहीं। इनकी नीतियां तो इस तरीके की मध्यम वर्ग को हिंदुस्तान के नक्शे से मिटा देंगी सर। अभी आप हम एसी में बैठे हैं सर, बात कर रहे हैं, कल को ये भी खतरा आएगा जब हमारा पैसा, आज DICGC एक्ट 1 लाख तक कवर करता था, अब इन्होंने 5 लाख कर दिया। 90% लोग कवर हो गए, लेकिन क्या 5% जिनके 5 लाख से ऊपर है, उन्होंने अपराध किया है सर, उनको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए?
ये सरकार उनके दाम उनकी कॉस्ट पे डकैती डाल रही है, उनकी जेब के ऊपर, सरकारी पैसे के, जनता के पैसे के ऊपर नेतागिरी करना चाहते हैं ये। आज ये मन की बात कहते हैं लोग, का जो कमीशन है वो डिपॉजिटर से ही लिया जा रहा है, उसका डिपॉजिट कमीशन लेकर के, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम लेकर के उसी का जो प्रोडक्ट है उसको इंश्योर कर रहे हैं। सर ये सारी समस्या जनता की है और जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी साहब के भ्रम में वो पागल है, सारी समस्या जनता की है दादा। इसमें बैंकर तो दादा की पार हो गई, दादा के हमारी ये साल 2 साल बचे। सर मेन तो नए लड़कों का और जनता को है, जिनके रोजगार की ये बात करते हैं उनको रोजगार देते नहीं है। ये बातें करते हैं खाली कि हम रोजगार देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आज जरूरत है जनता को अवेयर करने की। So that was a very nice conversation with you, Mr. Chauhan, and Mr. Das. We will conclude this session over here, and thank you once again for joining Indian PSU. Thank you. Thank you. नमस्कार। नमस्कार दादा नमस्कार। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार।